Good morning, students. Today we are going to deal with मानव भूगोल के मूल सिद्धांत बुक, क्लास 12 ज्योग्राफी, सेकेंड चैप्टर विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, चैप्टर सेकेंड, द वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ. In this chapter, I am going to deal with 3 subtopics that are doubling time of population, जनसंख्या के दुगने होने की अवधि, सेकेंड इज स्पेशल पैटर्न्स एंड थर्ड इज इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप और जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव. इन 3 टॉपिक्स को अभी हम इन डिटेल सेकेंड चैप्टर 12th ज्योग्राफी की बुक से डील करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, as we are going to start with the lesson, you have already studied density and distribution, घनत्व और वितरण. I'll use an example to clear it. Now you can see, if it is 1 square kilometer area and number of people are there, and second one, this is 1 square kilometer area and the number of people. Now we can clearly see this is having less density and this is having more density. Number of people per square kilometer area are referred as population density, and the pattern vitran distribution refers to it may be this, it may be this, it may be this. How the people are, it simply means distribution simply means how the people are spread over a land. Distribution patterns can be different. It can be concentrated at some places and sparse at others. So now we are clear with the concepts. Density means number of people per square kilometer area. This is high density area. This is low density area. Pattern means, distribution means वितरण. कहीं ज़्यादा हो सकते हैं लोग, कहीं पर कम हो सकते हैं, बहुत कम भी हो सकते हैं. This is called distribution. Now we will continue with the topic. We are dealing with population doubling time. Population doubling time means डबल होने में, 2 गुना होने में लगने वाला समय. Basically, it refers to the time. Population increases with time, and the time taken by a population to double itself is called population doubling time. I'll see it. We'd like to see it here. It simply means the time taken by a population to double itself. For example, in 1650 AD, population of the world was 500 million. And to find the population doubling time, how long it will take to be 1000 million? Answer is 1804 AD. About 154 years world population took 154 years to double itself from 500 million to 1000 million. This is called population doubling time. It depends on growth rate of population. For division, it means change of population growth rate. We are going to revise it. It means change of population in particular area between 2 points of time. समय के 2 अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को पॉजिटिव या नेगेटिव कहते हैं. एग्जाम्पल, ये टोटल पॉपुलेशन है. 10 साल बाद इसमें ये ऐड हो गई, तो जितनी ऐड हुई है वो पॉपुलेशन ग्रोथ है. या कोई महामारी फैल गई
उसकी वजह से इतने लोग मर गए, तो ये पॉपुलेशन माइनस की जाएगी इसमें से। Therefore, once again, population growth refers to change of population in particular area between 2 points of time. समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मीन्स एडिशन एंड नेगेटिव मीन्स सब्ट्रैक्शन, ऋणात्मक, कम हो जाना। कोई प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कोई महामारी की वजह से पॉपुलेशन कम हो जाती है तो नेगेटिव ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ मीन्स चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन एन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 points of time. So, the population doubling time refers to growth rate. It is all affected by growth rate. Higher the growth rate, sooner will be double, and lower the growth rate, it will take a longer time to double itself. जनसंख्या की वृद्धि दर ज्यादा है तो जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी और जल्दी डबल हो जाएगी। अगर जनसंख्या की वृद्धि दर कम है तो जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ेगी और लंबा समय लेगी डबल होने के लिए। एक बार इसको लोअर द ग्रोथ रेट, लॉन्गर टाइम पॉपुलेशन डबलिंग, लंबा समय लगेगा। जनसंख्या वृद्धि दर कम होगी तो जनसंख्या दुगनी होने की अवधि लंबी होगी। और अगर हायर द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन डबलिंग टाइम इज फास्ट, जनसंख्या दुगनी होने की अवधि कम हो जाएगी अगर जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि आपके फादर आपको मान लीजिए 100 रुपीज़ देते हैं पॉकेट मनी के लिए। ये कितने भी वीकली हो सकती है, आपकी जैसे भी हिसाब से हो सकती है। आप कहते हो ये तो बहुत कम है पापा, ये तो बहुत कम है, तो हमें थोड़ी और इंक्रीज चाहिए। वो कहते ठीक है, मैं 5% से इंक्रीज एवरी ईयर कर दूंगा या एवरी मंथ कर दूंगा, डिपेंडिंग अपॉन। तो अगर 100 आपकी पॉकेट मनी थी तो नेक्स्ट टेन्योर में वो 105 हो जाएगी, देन अगेन इसी तरह से बढ़ती रहेगी। तो पॉपुलेशन ग्रोथ पे डिपेंड करता है। अगर आपके पापा कहें कि मैं तेरे को 10% से इंक्रीज कर दूंगा तो दैट विल बी 100 के बाद वो 110 हो जाएगी। तो लाइकवेज पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट पर डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन को डबल होने में कितना समय लगेगा। Now we'll come to second concept, spatial patterns of population change. Spatial means space, land, area. स्थानिक परिवर्तन, स्थानिक प्रारूप. It is related to space. Space मतलब place. Basically it is place. किसी प्लेस पर लोग ज्यादा रहते हैं, किसी प्लेस पर कम रहते हैं। हमें पता है हमारे देश में जनसंख्या का घनत्व अधिक है, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे हैं, ग्रीनलैंड है, कनाडा का नदर्न एरियाज हैं, बहुत ठंडे, बहुत गर्म, सहारा डेजर्ट हो सकता है जहाँ पर लोग कम रहते हैं। तो इसके पैटर्न्स जो हैं, स्पेशल पैटर्न्स जो पॉपुलेशन चेंज के अलग अलग हैं, इसको हम एक डायग्राम से देखेंगे। ये टेक्स्ट बुक का ही है, डबलिंग टाइम ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड पॉपुलेशन 5 मिलियन से 500 मिलियन, 500 से 1000। साइड में यहाँ पे देखते जाइए आप कि पहले 1500 ईयर्स लगे, देन 154 ईयर्स लगे, देन 123 ईयर्स लगे, देन 47 ईयर्स, देन 51 ईयर्स। दैट मीन्स जब टोटल बढ़ जाता है पॉपुलेशन का तो उसमें डबल होने की टाइम पीरियड जो है वो भी फास्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे टोटल पॉपुलेशन बढ़ जाएगी उतना ही डबल होने का टाइम भी जल्दी आ जाएगा। इसी को एक और डायग्राम दिया हुआ टेक्स्ट बुक में, उसी से हम
नंबर ऑफ ईयर्स फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन टू इंक्रीज बाय 1 बिलियन। पहले 100 ईयर्स लगे, नीचे से देखना शुरू करिए इसको, डायग्राम को। पहले 100 ईयर्स लगे, देन 30 ईयर्स, देन 15 ईयर्स, देन 12 ईयर्स, देन 12 ईयर्स, देन 12 ईयर्स। That means population is growing very fast. Now we'll see the map to see the distribution patterns. This is textbook population doubling time. In this diagram, dark shades denote population is doubling very slowly. We can see this. You can see the index पॉपुलेशन डबलिंग टाइम ओवर 100 ईयर्स। ओवर 100 ईयर्स वाला शेड डार्क जो है वो यूरोप में दिखाई दे रहा है, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत, ये डार्क शेड जो है ये दिखा रहा है कि 100 साल से ज़्यादा लग जाएंगे इसको डबल होने में। और इंडेक्स में और देखिए, 41 से 100, 31 से 40, 21 से 30, लेस देन 20, ऐसे एरियाज जो हैं जो बहुत जल्दी हो रहे हैं, ये 31 से 40 एंड 21 से 30, ये मैक्सिमम अफ्रीकन कंट्रीज़ में और एशियन कंट्रीज़ में ये पॉपुलेशन, ये लोअर सदर्न एशियन कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में ऐसी ज़्यादा पॉपुलेशन है जहाँ पर ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा है, इसलिए डबलिंग टाइम कम है। इसी के साथ हम इसको डिस्कस करते हैं, मेन पॉइंट्स इसके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ में नेगेटिव रिलेशन है। इट मीन्स मोर द पॉपुलेशन डेवलपमेंट, लेसर इज द डेवलपमेंट ज़्यादा है। जो विकसित देश है, हम विकसित देश किसे कहते हैं? जिनकी जीडीपी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है। बेसिकली रफ लैंग्वेज में डेवलप्ड कंट्रीज वो हैं जहाँ से पंजाब के बहुत सारे लोग माइग्रेट करके जाना चाहते हैं। कनाडा हो सकता है, यूएस हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, डेवलप्ड कंट्रीज। तो वो सभी देश जो डेवलप्ड हैं, इकोनॉमिकली बेटर हैं, वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है, जहाँ पर वहाँ पर पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कम है। पॉपुलेशन ग्रोथ कम होती है, नेगेटिव रिलेशन है। हायर द पॉपुलेशन डेवलपमेंट, लोअर इज द पॉपुलेशन ग्रोथ। दैट इज द रीजन कि जो हमने अभी देखा है यूरोप के कंट्रीज में, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बहुत कम है, इसलिए उसको डबल होने में 100+ ईयर्स लगने का चांस है। वेयर एज एशिया एंड अफ्रीका अभी हमने मैप में देखे थे, वहाँ पर ग्रोथ रेट ज़्यादा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है, इसलिए वहाँ पर पॉपुलेशन का डबल होने का अवधि कम है। बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन वहाँ पर डबल हो जाएगी। 21-31 ईयर्स के इन बिटवीन इनके कंट्रीज़ में ग्रोथ रेट ज़्यादा होने की वजह से पॉपुलेशन डबलिंग टाइम भी ज़्यादा है। फर्स्ट पॉइंट अभी हमने क्या डिस्कस किया है? इट डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मोर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लॉन्गर द टाइम टू डबल पॉपुलेशन। सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, इवन द स्मॉल ग्रोथ रेट, अगर हम पॉपुलेशन की वर्ल्ड लेवल की काउंट करें तो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कम हो रहा है। हम बहुत सारे लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा बेसिक की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि उस पर अगर हम कम ग्रोथ रेट से भी देखें तो भी पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ेगी। इसको हम उसी एग्जाम्पल के साथ और एक्सपेंड करते हैं। अगर आपकी 100 रुपीज़ थी पॉकेट मनी, तो उसमें सिंगल 5% का इंक्रीज लगाकर हमने उसका 105 बना दिया, इतना हो जाएगा। लेकिन आप अगर मानिए कि आपकी 10 लाख पॉकेट मनी थी और उसमें हमने सिर्फ 5% ही जोड़ा है, तो दैट विल बी इक्वल टू 100 at the rate 5% is equal to
5 plus 100, 105. 10 lakhs at the rate of 5% means 50,000 plus 10 lakh, that means 10 lakh 50,000. वही रेट है, अगर हमारा बेस कम है तो उसमें हमें कम दिखाई दी है ग्रोथ, और अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन 7.8 बिलियन है तो देखिए उसमें कम से कम ग्रोथ रेट भी लगाएंगे तो पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ जाएगी. नाउ द सेकेंड पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड इज कि even smaller growth rate when applied to a large population, it leads to large population change. And the third point we are going to discuss is even if growth rate continues to decline, total population grows each year. वृद्धि दर अगर नियंत्रण में भी रहे, कम भी रहे, तो भी कुल जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ेगी ही. हालांकि उसका रेट कम होगा, लेकिन पहले ही बेस इतना ज़्यादा है कि कम रेट पर भी वो हमें ज़्यादा ही महसूस होगी. तो नाउ वी हैव 3 पॉइंट्स इन टोटल. स्पेशल पॉपुलेशन चेंज, वी कैन नोट इट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफेक्ट्स population growth negatively. Second is smaller growth rate even applied to large population leads to large population change. Even if the growth rate continues to decline, total population grows each year. Population तो बढ़ती ही रहेगी. And the next topic we are going to discuss is impact of population change. Impact of population change means population के बढ़ जाने से क्या असर होगा. परिणाम, परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव हम देख रहे हैं. यूरोपियन कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पर ग्रोथ रेट कम है और पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है. इसीलिए हमारे जैसे देश के बहुत सारे लोग जो हैं उन कंट्रीज में माइग्रेट कर रहे हैं. और किन लोगों को ले रहे हैं? वो अच्छी क्वालिटी के लोगों को, ह्यूमन डेवलपमेंट के आधार पर. अगर उनको टेक्नीशियंस चाहिए वो उनको लेते हैं माइग्रेशन. हर एक को नहीं मिलती है माइग्रेशन, बिकॉज दे हैव द पावर टू चूज. वो चूज कर सकते हैं कि किस व्यक्ति की हमें ज़रूरत है हमारे देश में, उसी हिसाब से वो उसको इमिग्रेशन अलाउ करते हैं. तो हम देखते हैं कि पॉपुलेशन चेंज की वजह से पॉपुलेशन जनसंख्या परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है. पहला पॉइंट है संसाधनों पर दबाव. हमारी जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है. हमें आए दिन पता चलता है कि संसाधन कम पड़ रहे हैं. हमें जो वाटर सप्लाई सब घरों के लिए पूरी हो जाती थी, गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वाटर सप्लाई ही पूरी नहीं पड़ती. रोड्स हमें लगता है बहुत चौड़ी हैं, बहुत बढ़िया बनी हुई हैं, जब खाली हैं तो बहुत चौड़ी लगती हैं. जैसे ही ट्रैफिक बढ़ जाता है तो हमें लगता है कि ओहो ये तो सड़कें बहुत मुश्किल हो गया है, इस पर ट्रैवल करना, ड्राइव करना, आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है. तो वही संसाधन जो कम जनसंख्या पर पूरे लगते थे, जनसंख्या बढ़ जाने पर वो हमें उनकी शॉर्टेज महसूस होती है. सेकंड पॉइंट है जनसंख्या पोषण में सक्षम नहीं रहते हैं वो संसाधन. इनसफिशिएंट टू मेंटेन पॉपुलेशन. भोजन है, हम एग्रेरियन कंट्री हैं, एग्रीकल्चर पर हम निर्भर करते हैं. हमारी कितनी 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई है. स्टिल हमें अपने भोजन की ज़रूरतें पूरी करने के लिए विदेशों से सामान मंगाना पड़ता है. क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन हमारी प्रोडक्शन से ज़्यादा है. हमें दालें मंगवानी पड़ती हैं, हमें ऑयल सीड्स मंगवाने पड़ते हैं, बहुत बार अनाज भी मंगवाने पड़ते हैं. हमें डिपेंड अपॉन. तो जो संसाधन हैं वो बढ़ती हुई जनसंख्या अगर बहुत बढ़ जाती है तो उसके लिए सक्षम नहीं है. उसको पोषण करने के लिए, उसको पालने के लिए सक्षम नहीं रह जाते. थर्ड पॉइंट, एपिडेमिक्स भी तभी फैलते हैं जब पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज कम हो जाती हैं, गवर्नमेंट जो है मैनेज नहीं कर पाती है इतनी बड़ी पॉपुलेशन की फैसिलिटीज. तो कोई ना कोई महामारी के रूप में, एड्स के रूप में हो सकता है, या हो सकता है अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, या ओवर फ्लड्स हो जाए, बारिश अधिक हो जाए, डैम्स टूट जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है. उस समय में सबसे ज़्यादा स्प्रेड होता है जब पॉपुलेशन हाई होती है. हायर द पॉपुलेशन, मोर द रेट ऑफ एपिडेमिक्स एंड ऑल प्रॉब्लम्स.
माना जाता है, माल्थस की थ्योरी है कि नेचर अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करती है कि ज्यादा जनसंख्या हो जाने पर नेचर ही कोई ना कोई ऐसी क्लैमिटी पैदा कर देती है कि जनसंख्या कम हो जाए. इट डिपेंड्स. सो वी आर ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट. रिड्यूस्ड एवरेज लाइफ. एवरेज लाइफ इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. जीवन प्रत्याशा. जीवन प्रत्याशा का मतलब है एवरेज लाइफ. मान लीजिए कोई व्यक्ति 60 की एज में डेथ हुई है, किसी की 70 की, किसी 80 की, कोई 24 की एज में भी हो सकती है, कोई 10 ईयर्स का भी हो सकता है, कोई 1 ईयर का भी हो सकता है. इस सब का डाटा मिलाकर कंट्री में एवरेज डेथ्स के साथ उसको मीन निकाला जाता है. मीन आप समझते हैं, एवरेज निकाली जाती है कि लगभग किस एज के लोग किस देश में कितने साल जीते हैं. इन सब की डेथ्स का मीन निकालकर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है. उसके जीवन प्रत्याशा. जीवन प्रत्याशा, औसत जीवन प्रत्याशा कितनी है. तो जैसे ही पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो जाता है, बहुत बढ़ जाती है जनसंख्या, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी एवरेज लाइफ की लेंथ वो कम हो जाती है. विकसित देशों में, जापान में एवरेज लाइफ जो है मोर देन 80s है. हमारी कंट्री में अराउंड 67 है. बहुत सारी जो हमसे भी कम विकसित हैं वहाँ पर और भी कम है. अफ्रीकन कंट्रीज में अराउंड 50s एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिसोर्सेज एंड द फैसिलिटीज अवेलेबल. और जितनी ज़्यादा ग्रोथ रेट होगा उतनी ही फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूस्ड लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. दैट मीन्स मानव विकास कम हो जाएगा. मानव विकास बेसिकली एक बड़ी टर्म है. मानव विकास का मतलब है जिसको हम शिक्षा से, स्वास्थ्य से और इकोनॉमिक लेवल से मेजर करते हैं. जिन कंट्रीज को हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं वहाँ शिक्षा भी अधिक होती है, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी अधिक होती हैं, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है. दैट मीन्स स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं और इकोनॉमिकली भी सब लोगों को काम मिल जाता है. जिन कंट्रीज में पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, तीनों चीज़ें कम होनी जाती हैं. काम नहीं मिलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी, काम नहीं मिलेगा, इकोनॉमिकली लो हो जाएंगे. शिक्षा की, स्वास्थ्य की सुविधाएं कम हो जाएंगी. शिक्षा सब लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं सब लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी. तो मानव विकास जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट, बेसिकली इट रेफर्स टू क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ जितनी अच्छी होगी उतना ही वहाँ पर विकसित देश कहलाते हैं. जिनकी कंट्रीज की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती है वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट भी कम हो जाती है. तो वी विल सम अप